let's continue with what? Carboxylic acids. We have done the preparations. Okay, so let's go with what? Chemical reactions. Before going to the chemical reaction, let's deal with the how they will cleave the bonds, right? What is the acidic nature? Let us see about the what acidic nature of acidic nature of what? Carboxylic acids, acidic nature. Okay, so let's go with what? Acidic nature. What will happen when there is a cleavage of what? OH bond. Okay, when carboxylic acid OH, right, on reacting with that is active metal, what there is a formation of what? Salt. फॉर्मेशन हो जाएगा उसका सॉल्ट की HCO माइनस यानी प्लस, राइट, और क्या हो जाएगी? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, राइट, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ऐसे रिएक्ट करेगा. वेयर वी नो दैट इज व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विद एक्टिव मेटल, दे विल गिव यू व्हाट? Salt, and they will liberate the water. Sorry, H2 gas. H2 gas liberate होगा यहाँ पे. H2 gas जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा एक्टिव मेटल के साथ, वो क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, राइट. H2 हम सबको पता है क्योंकि इसकी नेचर क्या है? ये एसिडिक इन नेचर है, राइट. कैसे ये रिएक्ट करेगा एक एक्टिव मेटल के साथ? दे विल गिव यू व्हाट? दैट इज वन सॉल्ट एंड देयर इज अ लिबरेशन ऑफ व्हाट? H2. एसिड का मतलब क्या होता है? H प्लस देना, राइट. H प्लस H2 गैस लिबरेट हो रहा है, हमें तभी पता चल जाता है that is acidic in nature, right. So for example, first of all we'll balance the equation, okay, like this. अगर फिनॉल रहा फॉर एग्जाम्पल, इसके जगह पे C6H5OH, वो क्या करेगा? एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके दे आल्सो फॉर्म व्हाट? O माइनस यानी प्लस, और लिबरेट क्या होगा? H2. फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, वी ऑल नो दैट, राइट. वो उनसे भी ज्यादा एसिडिक होते हैं, राइट. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऐसा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2RCOO व्हाट? OH, क्या होगी यहाँ पे? ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा. OH बॉन्ड क्लीवेज. क्लीवेज मीन्स व्हाट? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. क्लीवेज मतलब क्या? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड. OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी यहाँ पे, राइट. OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है ना. रिएक्ट किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एक्टिव मेटल के साथ. ऑन रिएक्टिंग दे विल गिव यू व्हाट? एक सॉल्ट मिलेगी O माइनस यानी प्लस, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, राइट. Like this, there is a reacting with what? It is reacting with what? On active metal, they will give you liberate the hydrogen gas. इससे हमें इसकी एसिडिक नेचर की पता चलती है. What do you mean by acids? Acids का काम क्या होता है? हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर, राइट. H प्लस देना. So like this. अगर हम बेस के
साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? लेट अस सी दैट. यू जस्ट टेक इट डाउन. So if when they will react with base, what will happen? जब OH let's take phenol, C6H5 OH on reacting with what? NaOH. They will give you what? एक salt देंगे C6H5 O minus Na प्लस, राइट. और क्या देंगे आपको? H2O, ये निकलेगा बाहर, राइट. निकलेगा H2O. Here they are giving what? They will give you H2O. But the alcohols on reacting with they won't react with the bases, right? वो बेस के साथ अपना रिएक्शन नहीं करते. So where कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जब COOH क्या होगी? They will give you what? RCO minus Na plus and H2O liberate होगा, right? H2O निकल रहा है बाहर. Like this, where in case of base, phenol also reacts and acidic carboxylic also react. When we talk about weak bases, जब हम weak bases के लेते हैं, जब हम react करवाते हैं, तब क्या होगा? Let us see. For example, that is weak bases means that is NaHCO3 or else you can take Na2CO3. On reacting, if we react the alcohol with NaHCO3, they won't give you any reaction because they won't react with weak bases. Alcohols won't react with what? Weak bases, like weak alkalis, like this Na2CO3, NaHCO3. इनके साथ ये रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट नहीं करेगा क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगी, राइट. They won't react with what? Weak alkalis. They are called what? Weak alkalis. Alkali, right? Weak alkali है. लेकिन एसिडिक एसिड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर सकते हैं. H plus will take NaHCO3 on reacting with, they will give you what? RCO minus Na plus and there is a liberation of what? CO2. यहाँ पे H2O भी बाहर निकलेगा और CO2 भी बाहर निकलेगा, राइट. हमें पता ही लग जाता when CO2 is liberated with the reaction with this, we should know, we get that the carboxylic acid was present. CO2 निकल गया बाहर तो हमें पता लग जाता है क्या है हमारे पास? कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है. On reacting with weak alkali, they will give you what? CO2 gas. यहाँ पे पता चल रहा है ना एसिडिक नेचर के, राइट. वे अल्कोहल्स देखो वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, वीक अल्कली के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, बट स्टिल कार्बोक्सिलिक एसिड साथ रिएक्टिंग विद वीक अल्कली आल्सो, सो दे आर हाईली एसिडिक इन नेचर, राइट. ये वीक अल्कली के साथ भी रिएक्ट करके क्या कर रहे? गैस CO2 गैस लिबरेट कर रहे. ऑन द कंक्लूजन इज दैट I'll remove this one, just take it out. So where carboxylic acids are more acidic than what? Than phenol and what? Alcohol, राइट. उनसे भी रिएक्शन ज्यादा करेगा. वह आपने पहले ही
पहले ही देख लेंगे, राइट। वीक अल्कली के साथ भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करते हैं, वेर ये दोनों नहीं करते, लाइक दैट। हियर द ऑर्डर, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी? ऑर्डर कैसे होगी? इन सीटी दे लास्ट में ऑर्डर कैसे होगा? पहले कौन सा आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड्स greater than phenols, greater than what? Alcohols, right? ये शो करेगा, right? ऐसा ही होगा। So let's get the clear idea of acidity. Acidity के बारे में और clear idea देख लेंगे, just right? So अगर हम पानी में डाल दें alcohols, right, OH, it will be like this, okay, on हाइड्रोलाइसिस करवाएं, पानी में डाल दें तो क्या होगी? इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। ऑन रिएक्शन क्या करेगा? ये RO बन जाएगा, RO माइनस प्लस ये क्या होगी? H3O, हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस होगा, राइट, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यू कैन सी RO, ऑक्सीजन पे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। ये R क्या है? अल्काइल ग्रुप, राइट। वो क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। व्हाट डू मीन बाय प्लस आई इफेक्ट? ये क्या करेंगे? ये अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फेंकेंगे, लाइक दिस। सो अगर आप पॉजिटिव आयन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे रहे, ऑलरेडी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, राइट। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस विल बिकम मोर। सो ये इजीली क्या नहीं करेगा? ये हाइड्रोजन को लीव नहीं करेगा। सो इट वोंट लीव हाइड्रोजन दैट मच इजीली व्हेन दे शो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। सो यू जस्ट टेक इट आउट, आई विल गिव बैक। Sorry for the disturbance. So here what where we are? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये आयन, राइट। इस पे क्या हो रहा है? ये R क्या कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। What do you mean by प्लस आई इफेक्ट? प्लस इंडक्टिव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगी? प्लस आई इफेक्ट विच व्हाट? वो क्या करेगा? फॉर एग्जांपल दिस इज योर CH3O माइनस, ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंकेगा। इट विल पुश द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स व्हाट? ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये जल्दी नहीं छोड़ेगा ना, जो जिस हाइड्रोजन को ये बॉन्डेड है, इट वोंट लीव अर्ली, ये इसको जल्दी नहीं छोड़ेगा, फिर से वापस खींच लेगा। सो ये क्या होगी? अनस्टेबल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, इट इज अनस्टेबल, राइट। अनस्टेबल रहेगा, फिर से H ये मांग करेगा, राइट। अगर अल्कोहल इसकी वजह से इनकी एसिडिटी क्या होगी? कम होगी, कंपेयर विद फिनॉल्स। देखिए फिनॉल्स में क्या होता है? इट दिस विल शो व्हाट? प्लस आई इफेक्ट। ये क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो कम होगी तो इस पे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ये हाइड्रोजन को फिर से अट्रैक्ट करेगा, फिर वापस रिवर्सिबल रिएक्शन होने की चांसेस, राइट। वे इफ वी टेक फिनॉल C6H5OH, or else we can write like this, OH on hydrolysis H2, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है?
OH क्लीवेज होगा, O माइनस आ जाएगा इस पे, राइट, O माइनस आ जाएगा, इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। ये क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगी, हियर देयर इज अ रेजोनेंस, वी ऑल स्टडीड व्हाट इज रेजोनेंस, राइट। ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा यहाँ पे SiO+, में बहुत बार पढ़ चुके हैं हम रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फेंकेगा, राइट, एंड और जो ये बॉन्ड था वो क्या करेगा, इसमें कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन, राइट। ऐसा इस कार्बन पे आएगा यहाँ पे, राइट, यहाँ कार्बन पे क्या आ रही है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे देखिए, राइट। ये जब इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, जब ट्रांसफर हो जाएंगे, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जंप हो गए, राइट। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन हमें क्या है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो सस्टेन कर पाता है, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन के इस पे नेगेटिव चार्ज नॉट दैट मच, राइट, बिकॉज इट इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहाँ पे क्या होगी, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हियर सी alcohols are less acidic than phenols, right, because यहाँ पे देखो इसका भी चांसेस है, इसका भी चांसेस है, राइट। ये भी दे सकता है रिंग, इस बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच, राइट। तो अगर बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये भी दे सकता है इसको, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स बैटिंग कर सकता है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, COOH प्लस H2O, वो क्या करेंगे, RCOOH, राइट, सॉरी माइनस H3O प्लस, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करेंगे, आयन, और यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे रेजोनेंस होगी, सी यू कैन सी हियर देयर इज अ रेजोनेंस, कैसे होगा, आई विल शो यू, जस्ट टेक इट डाउन, स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, आई लाइक, so I will show you the resonance of that is कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेंस कैसी होगी। देखिए यहाँ पे ये रहा आपकी ऑक्सीजन, राइट, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, सॉरी हम क्या करेंगे, इसको डबल बॉन्ड करेंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज, राइट, इस पे नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस कैसा होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन्स को बैक करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे, राइट, आ रहे हैं यहाँ पे लाइक दिस, इस पे नेगेटिव हो जाएगा, राइट। फिर अगर फिर से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फेंकेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, राइट। ऐसा होगा इसकी रेजोनेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहे हैं, ज्यादातर ऑक्सीजन पे, लाइक दिस, ऐसे घूम रहे हैं, राइट। ऑक्सीजन आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग लाइक दिस, या तो फिर इस ऑक्सीजन पे रहते हैं या तो फिर इस ऑक्सीजन पे रहते हैं, तो उस पे उसको इतना अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वी नो दैट ऑक्सीजन इज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो देयर इज नो डिफरेंस, वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पे इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, राइट, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ऑलरेडी ये स्टेबल है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है। वेयर इन केस ऑफ बेंजीन, फिनॉल्स के जगह देखिए, फिनॉल्स में क्या होता है, ये रहा आपके ऑक्सीजन O-, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं, ये से अंदर घूमते रहते हैं,
राइट। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर, राइट। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होते हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो वो किस पे, कार्बन पे होते हैं। वेल कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या होता है, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इन कार्बन पे ये ऑक्सीजन भी दे सकता है या तो फिर ये रिंग भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं इस कार्बन को। लाइक दिस, ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन व्हाट, phenols. Why? Here see, electrons are mainly ज्यादातर किस पे है, ऑक्सीजन पे, पर ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट यहाँ पे क्या है, कार्बन पे बैठे ऑर्थो या पैरा, राइट, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, राइट। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना नहीं होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सो द carboxylic acids are more acidic in nature compared to what, that is your phenol. Just write it down this sentence. Carboxylic acids are more acidic than phenols, than alcohol. So let's go with what acidic nature on the basis, we'll deal with what on the basis of pKa. pKa value के ऊपर स्टडी करेंगे एसिडिक नेचर कैसे होगी। फॉर एग्जांपल RCOH प्लस H2O, दैट इज योर रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या होगी, RCOO माइनस एंड यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन, कार्बोक्सिलिक आयन और हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, so we can write the equation equilibrium reaction, but ये क्या है, reversible reaction. We can write the equilibrium reaction, right? K equilibrium is equal to R, पहले हम प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, CO माइनस कंसंट्रेशन, जब भी हम बॉक्स लिखते हैं उनको कंसंट्रेशन शो करते हैं, the brackets in chemical kinetics you will study, brackets will show what, concentration, right, and concentration of हाइड्रोनियम आयन। फिर प्रोडक्ट के बारे में, राइट। सो हियर हम वाटर एक्सेस में ले रहे, तो हम इस साइड ले लेंगे इसको, के इक्विलिब्रियम, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको RCOH and in the you want denominator we can write it, right। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ka, where Ka is your dissociation constant, I'll write here, where Ka is your dissociation constant, in acidic space constant, right। ये क्या है, K dissociation constant है, as से dissociate होगा उसकी, ये क्या है, K constant है, right, where Ka is in case of acid H3O plus को directly proportional होगी, right, as H plus कितने लिबरेट होगी उतना ही Ka क्या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, as K increases H plus also increases, right, इस K इंक्रीज होगा तो H plus भी इंक्रीज होगा, तो एसिडिक नेचर भी क्या होगी, increases, right। Just take it down, I'll explain you. As Ka increases
व्हाट H प्लस ऑल्सो इंक्रीजेस, Ka जैसे इंक्रीज होगा, Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। व्हाट इज Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट। राइट, K इंक्रीज होगा, if K increases then what H plus also increases, जैसे डिसोसिएशन इंक्रीज होगा H plus भी ज्यादा इंक्रीज होगी, तो if H plus is increases then acidic nature also increases। एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा, क्यों, एसिडिटी मींस व्हाट, एसिड मींस व्हाट, उसका काम क्या होता है, H प्लस देना, as H plus increases acidic nature also increases, right, but हमें क्या डिस्कस करना है about pKa, then what will be the pKa, pKa is equal to what, minus of log of at base, then that is your Ka, Ka की नेगेटिव है, Ka नेगेटिव है pKa के, मतलब जब Ka इंक्रीज होगा pKa क्या होगी, will decrease, this arrow will show you increasing, right, where this arrow will show you decreasing। याद रख लीजिए हमेशा, राइट, इंक्रीजेस, मैं क्लियरली लिखूं, राइट, वेयर एज Ka increases pKa decreases, ये है क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये क्या है, माइनस लॉग ऑफ Ka है, सो एज Ka increases pKa decreases, Ka is inversely proportional to what, pKa, हमें ये याद रख लेना चाहिए, राइट। लेकिन अभी देखिए, अगर Ka इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, अगर Ka इज डिक्रीजिंग, अगर K डिक्रीज हो रहा है तो H प्लस भी क्या होगी, डिक्रीज होगा, देन H प्लस decreases, right, H plus also get decreased, then acidic nature क्या होगी, acidic nature also decreases, जैसे H कम होंगे तो acidic nature भी कम होगा, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बन रहा है, pKa, सॉरी फर्स्ट acidic nature is inversely proportional to what, pKa, right, ये बन रहा है हमारा, कितना pKa वैल्यू हो गई, सॉरी, as increases the acidic nature है, जितना acidic nature इंक्रीज होगी उतना क्या pKa वैल्यू कम हो जाएगा, as the pKa increases acidic nature decreases, ये आपको याद रख लेना चाहिए, जब भी pKa वैल्यू ज्यादा रहा तो उस कंपाउंड की एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, एसिडिक नेचर कम होगा, जस्ट रिमेंबर दिस वन, राइट इट डाउन दिस वन। As acidic nature of compound is increases, pKa value will be decreases, as the pKa value increases acidic nature will what, it will decreases, they are inversely proportional to each other, just take it down, we'll continue. So let's continue, when electron withdrawing group और electron releasing group उनके जैसे compounds जब लगेंगे acidic compounds को तो उनकी acidity क्या होगी, let us see, right, कैसा होगा उनकी acidity, if
फिर अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मीन्स इलेक्ट्रॉन withdrawing groups. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मीन्स व्हाट? जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. वी कॉल देम एज व्हाट? which accepts the electron, we call that as electron withdrawing groups, right? जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. जब ऐसे ग्रुप CO एसिड्स को अटैच हुआ तो क्या होगी? EWG is attached with carbon. इस केस में क्या होगी? एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी, एसिडिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इस पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये खींच रहा है तो ये स्टेबल बने रहेगा, तो इजीली इसको छोड़ देगा, राइट? इजीली दे लीव वेयर व्हेन H+ is easily released, so we call them as what? They are acidic in nature, we know that, right? जब H+ easily जाएगा, easily they will go, then there is a acidity will be increased, right? The acidic nature of this compound will be increased. That is क्या होगी? Acidic nature is increased. क्योंकि क्या हो रहा है? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे खींचेगा तो ये अनस्टेबल कंपाउंड भी स्टेबल हो जाएगी, राइट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स फॉर एग्जांपल NO2 ऐसे वाले ग्रुप्स, राइट? CF3 ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं. मैं एग्जांपल्स दूंगी आपको. फर्स्ट विल सी अबाउट व्हाट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिव. इलेक्ट्रॉन when electron withdrawing group is attached, you just take it down this one. When electron withdrawing group is attached, acidic nature is increased. increase होगी हमेशा इलेक्ट्रॉन withdrawing group अटैच करें. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहा, releasing group. If we take electron releasing group, अगर electron releasing group रहा, that is वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, देगा अपने सामने वाले के ग्रुप को, राइट? ये ऐसा है. ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगा. इट विल शो व्हाट? प्लस आई इफेक्ट. अभी बताया मैंने. इसका क्या काम क्या है? इट विल पुश द इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? पुश करेगा इस कंपाउंड की तरफ ऐसे. अगर ये ऑलरेडी इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये क्या करेगा? फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा तो इस पे क्या होगी? इसकी अनस्टेबिलिटी क्या होगी? डगमगाएगी, राइट? ये इसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाएगा. ये फिर से इसको खींचने का ट्राई करेगा, राइट? इट वोंट इजीली रिलीजेस द H+ को इजीली रिलीज करने नहीं देगा. कौन? ऑक्सीजन. क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? पुश कर रहे हैं. प्लस द इफेक्ट इज शोइंग, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस द एसिडिक नेचर व्हेन where should I write? Take this one as a note, right? When we attach electron releasing group, then acidic nature of that compound will what? Decrease होगा.
डिक्रीजेस, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। राइट, समझ में आया सबको? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल CF3, राइट, जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, वो अगर खींचने वाला ग्रुप लगाएं हम पीछे, तो वहां पे क्या होगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, क्योंकि इजीली H को जाने देगा ये। लेकिन व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, देखो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट मींस वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा इस कंपाउंड के थ्रू, इसको पुश करेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये H+ को फिर से खींचेगा, सो इट वोंट लीव द H+ इजीली। सो नाउ H+ इजीली चल नहीं देगा, तो वहां पे क्या होगी, एसिडिटी ऑब्वियसली कम होगी। सो एसिडिक नेचर इज डिक्रीजेस in case of what, electron releasing group. You just take it down, these two notes, they are important. So let us take some examples of that is acidic nature, order कैसी होगी. Before going to that, I will tell you the order of electron withdrawing groups कैसे होंगे. That is what is, for example, CF3, more electronegative, then NO2, then Cn, then halogen, then phenol. ऐसा होगा इनकी एसिडिटी. राइट, CF3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये ऑर्डर है. राइट, यहाँ पे हम साइड में लिख लेंगे एसिडिक of carbon is directly proportional to what, electron withdrawing group, where acidity of carbon inversely proportional to electron releasing group. जैसे electron releasing group अटैच होगी तो एसिडिक नेचर कम होगा, और एसिडिक नेचर कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगी. सो लेट्स सॉल्व वन बाय वन. फर्स्ट एग्जांपल, CF3, COH, CH2, COH, NO2. Yeah, and for example, that is last one, CH3, COOH. Let's write this as A, B and C. इनकी ऑर्डर क्या होगी, एसिडिक नेचर कैसे कैसे होगा, मैं आंसर लिख दूंगी डायरेक्टली. क्या होगी, A is greater than B is greater than C. कैसे, how it will be, यहाँ पे देखिए, this is your what, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. देखो ऑर्डर में फर्स्ट आता है, सो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पीछे लगेगा उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी. सो इट फर्स्ट विल बी ए. हाउ इट विल बी बी, व्हाई नॉट सी, बी ही क्यों लिया हमने, क्योंकि NO2 क्या है, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप व्हिच इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, तो उसकी एसिडिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो बी लिख लिया हमने. वेयर दिस इज शोइंग व्हाट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. दिस इज योर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. सो ये लास्ट में आएगा. राइट, समझ में आया ये आंसर कैसा आया है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इसकी ऑर्डर CF3 इज मोर, CF3 सबसे पहले आया. सो बिकॉज ऑफ दिस ये हाई स्ट्रॉन्ग वन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, पहले इसकी एसिडिटी आएगी, क्योंकि ये मोर एसिडिक है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप व्हिच इज स्ट्रॉन्गर वन. राइट, बिकॉज ऑफ दिस A इज फर्स्ट. नेक्स्ट वन इज NO2. नेक्स्ट NO2 है तो NO2 भी आया. ये लास्ट में आएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मींस व्हाट, एसिडिटी कम होगी, राइट, डिक्रीज होगी, लाइक दिस. लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन. सेकंड एग्जांपल देख लेंगे. For example, if we take this one,
लेट्स टेक इट एज ए, बी एंड सी। इनकी आंसर क्या होगी? आंसर विल बी सी इज ग्रेटर देन व्हाट? बी देन ए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे देखिए, इस कार्बन पे इन तीनों में से को किस पे अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? फर्स्ट वी विल सी व्हिच वन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 है हमारा, राइट? NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द कंपाउंड विल गेट व्हाट? मोर एसिडिक नेचर। उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। सो फर्स्ट हमने क्या किया? सी लिखा। सो नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो इन दोनों में इस पे क्या है? डायरेक्टली बेंजीन रिंग COH को अटैच है, बट यहाँ पे ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचे अपने तरफ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखिए इजीली यहाँ पे इसको दे रहा है, राइट? बेंजीन रिंग होता है, इफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स दे भी लेगा तो ये डोनेट करेगा लाइक दिस। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे इसकी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा, सो बी रहेगा। वह इसका क्यों नहीं? इसके बदले में ये भी लिख सकते थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये है आपकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मीन्स व्हाट? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है? उल्टा इसको, राइट? अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा तो यहाँ पे क्या होगी? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट? प्लस आई इफेक्ट, अगर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पुश करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव H प्लस जल्दी रिलीज नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन? देयर इज अ एसिडिक नेचर विल बी बिकम्स डिक्रीज। एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगी एसिडिक नेचर कम होगी क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? गेटिंग दिस यू जस्ट टेक इट डाउन द आंसर्स। We'll take another example. So here this third one, right? यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ले लिया है हमने। आंसर will be this will be A, B and C। इसकी आंसर क्या होगी? A is greater than C, greater than what? B। इसकी एसिडिक नेचर ऐसा होगा। कैसे? देखिए इस पे इसका क्या है? डायरेक्टली है, राइट? ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल H इट इज, राइट? फॉर्मिक एसिड। लेकिन इन दोनों में देखो यहाँ पे क्या हुआ है? B को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, सो इसकी एसिडिटी ऑब्वियसली कम होगी कंपेयर टू दिस। व्हाई? इफ फॉर एग्जांपल दिस इज योर C, ऑक्सीजन, दिस इज योर माइनस H, ये रहेगा H, राइट? ऐसा है होगा आपकी दिस वन। ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे देगा, राइट? अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इजीली जाने के लिए नहीं देगा आपको। ऑक्सीजन वोंट लीव द हाइड्रोजन इजीली, उस पे नेगेटिव चार्ज भी जल्दी नहीं आएगा, तो इजीली नहीं जाने देगा, राइट? बिकॉज ऑफ दैट हियर क्या हो रही है? एसिडिक नेचर इसकी कम हो रही है कंपेयर टू व्हाट? फिनॉल। अभी ये फिनॉल में देखिए ऑक्सीजन है, राइट? फिनॉल है, फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? ये देखिए यहाँ पे इस कार्बन को एटलीस्ट ये तो डोनेट कर सकते हैं ना, राइट? अगर ये नहीं कर पाए, ऑक्सीजन नहीं हेल्प कर पाए, फिर भी वहां पे बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉन रिच, दैट विल हेल्प टू दैट वन एंड वो स्टेबल कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे और एक कोई भी नहीं है, वो वापस इसी हाइड्रोजन को बुला लेगा। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन? एसिडिक नेचर फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन। बिकॉज ऑफ दैट A is greater than C, greater than B। समझ में आया सबको? इन तीनों के आंसर लिख लीजिए, जस्ट टेक इट डाउन।